Good afternoon, students. In the previous class, we have discussed the development strategies adopted by Pakistan. We have seen the various features of Pakistan economies. Before that, we also discussed the development strategies adopted by the China, and we already learned the development strategies adopted by India. So we have completed the discussion on the development strategies, the development path adopted by these three countries. Now, today we are going to discuss the demographic conditions of these countries with the help of demographic indicators. These demographic indicators are related to the demography of the countries, related to the population features, and here we will compare the demographic condition of these three countries with the help of several indicators. Now, demographic indicators are very important for the demographic advancement and development of a country, because economic growth and economic development, there are two terms which are different from each other, because development includes all the factors of the economy, not only related to economy, not only related to the money and income, but it shows the growth of demography, the qualities of living standards, the population, etc. So therefore, demographic indicators are the important one to know the condition of a country, to know the demographic features of a country, to know its advancement, the level of advancement. So keeping that in mind, we are going to discuss. So let us start it. Now, if we look at the global population, out of every 6 persons living in this world, one is an Indian and another a Chinese. Okay. So what is said here? When we look at the global population, out of every 6 persons living in this world, one is an Indian and another a Chinese. So out of every 6 persons of people living in this world, you will find one is Indian and second one is Chinese. तो पूरा दुनिया की जब पॉपुलेशन की बात हम लोग करते हैं, तो हर एक 6 आदमी में से, हर एक 6 आदमी में से एक आदमी आपको इंडियन मिलेगा, दूसरा चाइनीज मिलेगा. तो आप सोच सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भागीदारी है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वो बहुत ही हाई है इंडिया एंड चाइना का. एंड वी नो दैट चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री in terms of population, and India is second biggest, दूसरा है. So the population of Pakistan is very small in comparison to India and China, but when we talk about our another neighbor, that is Pakistan, then its population is very small when you compare to India and China. So this is one of the most important feature of India or China. It is one of the most important advantages that the country like India gets, that it has huge manpowers, a capacity to build up the economy, a capacity to provide the supply of goods and services to the world, a capacity
to produce goods and services for whole world because of its main power, because of its population advantages. There are many countries around the world which lack the population size, and because of that, even they have wealth, they can't play the role that can be, which is possible by the countries like India or China. So the population of Pakistan is very small in comparison to India and China, because population plays a very big role in the growth of economy, in the development of economy, because we know that growth of economy depends on demand and supply. Huge population creates huge demand, and then to fulfill that demand, supply is increased, and when demand and supply both increases, economy grows. Though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations, its density is the lowest. लेकिन जब चाइना की बात करते हैं तो एक चीज़ आप जानिए कि ये जो है, ये तीनों कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया से ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, इंडिया से भी काफ़ी बड़ा है, जोग्राफिकली जो इसके पास काफ़ी एरिया है, लेकिन जो इसका डेंसिटी है वो लोएस्ट है। तीनों में सबसे कम डेंसिटी जो है वो चाइना का ही है। तो डेंसिटी जो ही यहाँ पे है कि नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आपको, आप यदि एरिया निकाल लीजिए, 1 किलोमीटर ऑफ लेंथ, 1 किलोमीटर वाइड, और फिर उसका आप एरिया निकालिए, तो जो 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया होगा उसमें कितना आदमी रह रहा है, कितना आदमी जो है वहाँ पे आपको एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेंसिटी जो है वो चाइना का आपको लोएस्ट है, जबकि एरिया उसके पास ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा है लेकिन आदमी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर कम है, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों का ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू चाइना। Population growth as being highest in Pakistan, followed by India and China. Now when we talk about the population growth, कि पॉपुलेशन जो है ग्रो जो कर रहा है, किस रफ्तार में ग्रो कर रहा है, देन पाकिस्तान इज़ हाईएस्ट। पाकिस्तान जो है रैंक 1 पे है ये तीनों कंट्रीज़ में, मतलब स्पीड में वहाँ पे ग्रो कर रहा है, जो पॉपुलेशन है वो स्पीड में वहाँ ग्रो कर रहा है। उसके बाद फिर इंडिया और लास्ट में चाइना। चाइना का जो है सबसे कम स्पीड में ग्रो कर रहा है अमॉन्ग दिस 3 कंट्रीज। One child policy adopted by China in late 1970s is the major reason for low population growth. Now we know that China is the largest populated country, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है, बट जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन कंपेरिजन टू इंडिया और पाकिस्तान। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है 1 चाइल्ड पॉलिसी, जो आपको चाइना लाया था 1970s, लेट 1970s में आपको जो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था कि एक आदमी को जो है 1 चाइल्ड रहना चाहिए। तो जो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया था, दैट इज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस मेजर आल्सो लेड टू डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और चूंकि ये 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था कि एक ही जो है चाइल्ड रहना चाहिए, तो जो ये वहाँ पे कानून लाया गया, तो एक कपल को केवल 1 चाइल्ड जो होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या हुआ, सेक्स रेशियो भी जो है वो घट गया। सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि जो 1000 मेल्स है उस पर कितना फीमेल्स है, तो जो है तीनों कंट्रीज़ में कम है। ऐसा नहीं है कि चाइना में जो है ज़्यादा है, वहाँ पे और कम है, क्योंकि एक ही चाइल्ड जो है होगा तो उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो आपको मेल का रहता है। ये तीनों कंट्रीज़ में
जो प्रेफरेंस था वो आपको मेल का था, वो आपको बॉय का था। द सेक्स इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। सेक्स रेशियो जो है यानी कि फीमेल्स का जो है पॉपुलेशन कम होना इन कंपेरिजन टू मेल्स, ये लो है, तीनों कंट्रीज में है। एंड बायस अगेंस्ट फीमेल्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। फीमेल्स के अगेंस्ट में जो बायसनेस है, जो पक्षपात है, वो एग्जिस्ट तीनों कंट्रीज में कर रहा है। आफ्टर फ्यू डिकेड्स इन चाइना देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग पीपल। दिस लेड चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव 2 चिल्ड्रेन। लेकिन चाइना जो है रिसेंटली क्या किया, अपना पॉलिसी 1 चाइल्ड पॉलिसी को चेंज किया, उसको 2 चिल्ड्रेन पॉलिसी जो है लाया। ठीक है, यानी कि कपल जो है 2 चाइल्ड को जो है वो आपको बर्थ दे सकता है। तो 2 चाइल्ड को क्यों लाया? क्योंकि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी था उससे क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है चाइना में जो एल्डरली पीपल है, जो ज़्यादा उम्र के जो आदमी है, जो बूढ़े आदमी है, उनका संख्या ज़्यादा हो जाएगा, और जो यंगर वन है, जो न्यू एज का होगा, वो आपको कम हो जाएगा, यंग पीपल जो है कम हो जाएगा। तो ये एक आपको चिंता की बात चाइना के लिए हो गया, क्योंकि यदि यंगर पीपल कम रहेगा तो फिर उससे पूरा इकोनॉमी जो है वो नीचे जा सकता है, क्योंकि मेन पावर चाहिए इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, वर्क करने के लिए। तो इसीलिए चाइना जो उसमें रिलैक्सेशन दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी जो वहाँ पे अब वो ले आया। नाउ फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। Now, when we talk about the fertility rate, then Pakistan is on high, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी रेट है, जबकि चाइना में जो है लो है। Urbanization is high in China, with India having 33% of its people living in urban areas. आपको एक चीज़ याद रखना है कि अर्बनाइजेशन जो है मीन्स शहर में जो आपको शहरी जो पॉपुलेशन है वो चाइना में ज़्यादा है, यानी कि अर्बनाइजेशन जो है वो चाइना में ज़्यादा है। इंडिया हैविंग 33% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, लेकिन इंडिया में केवल 33% ही रह रहा है और ये सबसे नीचे है। तो अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में, जो शहर में जो आदमी रहते हैं वो चाइना में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में है और फिर इंडिया में। आपको याद रखना ये चीज़, कभी कभी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्बनाइजेशन में जो है, शहरीकरण में जो है, वो पाकिस्तान का क्या रैंक है, इंडिया क्या रैंक है। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, यानी कि जो शहर में जो लोग रहते हैं, अर्बनाइजेशन जो है वो आपको सबसे ऊपर चाइना है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया में। तो 1 हो गया आपको चाइना, सेकेंड हो गया आपको पाकिस्तान, एंड थर्ड हो गया इंडिया। इसको आप याद रखेंगे। हम लोग सब कुछ में जो है पाकिस्तान से आगे है, लेकिन इसमें हम लोग जो है उससे पीछे है। Now we can see the data which is given in the table. Now this data is taken from the NCERT book. तो आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंट्री का है, फर्स्ट कॉलम में कंट्री का नेम है, यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन 2015 में जो है इंडिया में आपको इतना पॉपुलेशन है, चाइना में आपको इतना है 1371 मिलियन और पाकिस्तान में 188 मिलियन। आप सोच सकते हैं कितना जो है इसका डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप है। सबसे ज़्यादा आपको किस में है, चाइना में, फिर इंडिया में और फिर पाकिस्तान में पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब जो है पर ईयर कितना % पॉपुलेशन जो है ग्रो करता है, यानी कि कितना % पॉपुलेशन जो बढ़ता है। तो इंडिया में 1.2%, हर एक साल जो है इतना % बढ़ जाता है पॉपुलेशन। चाइना में 0.5%, 0.5% पॉपुलेशन बढ़ता है। पाकिस्तान में 2.1%, जस्ट अब 1.2 इंडिया में या 2.1, इसको आप रिवर्स कर दीजिए तो 2.1 यहाँ पे पाकिस्तान। इसको आप याद रख सकते हैं इजीली। 1.2 का आप रिवर्स कर देंगे 2.1 हो जाएगा यहाँ पे। तो
यहाँ पे क्या देखें हम लोग, जो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 2.1%, इंडिया में 1.2% और फिर चाइना में 0.5% सबसे कम। क्या क्या रीजन था? तो वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना अडॉप्ट किया था 1970s में, वो मेन कारण था चाइना का लो पॉपुलेशन ग्रोथ का। ना डेंसिटी देखिए पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रहता है? इंडिया में 441 441 रहता है सबसे ज़्यादा, चाइना में 146 रहता है केवल, पाकिस्तान में 245 रहता है। ये तीन चीज़ हम लोग देखें। नेक्स्ट सेक्स रेशियो देखिए आप, इंडिया का 929 है, चाइना का 941 है और पाकिस्तान का 947 है। इंडिया जो है देखिए कितना कम है। फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का 2.3 है, इसका जो है चाइना का 1.6 है एंड पाकिस्तान कितना 3.7 है। देखिए लगभग चार चाइल्ड जो है वो एवरेज में आपको यहाँ पे पर वुमेन जो है, पर फीमेल जो है आपको लगभग 4 चाइल्ड जो है आपका ये एवरेज है जो जन्म लेता है बच्चा। तो 3.7 यहाँ पे है, यानी कि फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सबसे कम कहाँ पे है? चाइना में, और इंडिया में 2.3 है मिडिल में। अर्बनाइजेशन जो है इसको 2015 का डेटा एनसीईआरटी का लिया गया है। अर्बनाइजेशन में आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 56% ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, इन टाउन, इन सिटी, शहर में रहते हैं। पाकिस्तान में 39%, लगभग 40% जो है शहर में रहते हैं लोग, और इंडिया में 33% रहते हैं। तो अर्बनाइजेशन में आपको इंडिया जो है सबसे नीचे में है। So we have discussed today the demographic indicators of these countries, and we got many ideas regarding the demographic conditions of these countries. We can compare the position of these countries based on different indicators, means population size, annual growth of population, density, sex ratio, urbanization. So we discuss all these things. I hope that you got the indicators and you can analyze the level of these countries on demography. So this is all about today's class. Thank you.